Welcome student to the new session of magnetic effects of current. In previous class, we have studied the radius of circular path of charged particle when it enters a uniform magnetic field at right angles. आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स. We have studied that when charged particle enters a uniform magnetic field at right angle, it moves on a circular path. It moves on a circular path. और उस सर्कुलर पाथ की हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने पिछली क्लास में उसको कैलकुलेट करा भी था. उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे. So we have studied that radius of circular path is given by, dear student, you have to wait for 1 minute. Some technical issue is taking place over here. Okay, that's all right. So when charged particle, we studied in previous class, when charged particle enters a uniform magnetic field, it moves on a circular path of radius r, where r is given by mv upon qb. Now mv is momentum of charged particle. Momentum of charged particle. That mv can be written as p. So it is p upon qb. Now we know that if E is the kinetic energy of charged particle, then we can write E as half mv square. Multiply m on both sides, m square v square. So 2me equal to p square. So p can be written as root of 2me. So the radius of path can be written in terms of energy. देखिए यहाँ बहुत तरह के 3 और 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. जब हमें मोमेंटम दिया हो, when we are given the momentum, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. मास और वेलोसिटी गिवन है. टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. बट इन सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है कि we are given the kinetic energy of charged particle, so we will use this formula. दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं. This is one formula on mv upon qb, and this one is the radius of circular path in terms of kinetic energy. आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, तो जब आप इसे नोट कर लें तो आप मुझे बता दें. So this is the formula number 1. This is the formula number 2. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, if a charged particle
if a charged particle is given a potential difference, given a potential difference of V volt, then it acquires kinetic energy. ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से. Then it acquires kinetic energy E. So E can be written as Q into V, where V is potential difference. Now, if we will put the same value in this formula, so we will get 2mQV upon QV. So it will be root Q upon Q, 2mV upon Q into 1 upon V. तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, radius of circular path equal to 2 into mass into potential difference upon charge, whole is multiplied by 1 upon magnetic field. तो इस फॉर्मूले का यूज स्टूडेंट्स हम तब करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे when we are given, suppose in a question it is mentioned that a proton is accelerated by 100 volt and it enters a uniform magnetic field at right angle, then calculate the radius of circular path. तो तब ऐसे केसेस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. अब तीन तरह के 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं. पहला क्वेश्चन इस तरह का होता है, a charged particle is given a certain is moving with say velocity v, it enters a uniform magnetic field at right angle, calculate the radius of circular path. दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होता है, a charged particle has kinetic energy E, it enters a uniform magnetic field at right angle, calculate its radius of circular path. Then we will use this formula. Then we will definitely use this formula, R equal to root 2 ME upon QV. The third type of question is like that. A charged particle is accelerated by a potential difference, say 10 volt. It enters a uniform magnetic field at right angle. Calculate the radius of circular path. In that case, we will use this formula. So according to question, we will decide. You can use this formula in your board examination or in any other examination. पर बोर्ड एग्जामिनेशन में और इन सब में बच्चों एक फर्क होता है. वो फर्क ये है कि अगर आप किसी डिराइव फॉर्मूले को अगर बोर्ड एग्जाम में जहां आपको लिखना हो, आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. पहले फॉर्मूले का एक छोटा सा 2 स्टेप का डेरिवेशन कर लीजिए, उसके बाद आप उसे यूज करिए उस क्वेश्चन में, तो कोई इशू नहीं आएगा. तो अब हम इस पूरे रिजल्ट्स को लिख सकते हैं. तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, पहला फॉर्मूला तो हो गया mv अपॉन qv, दूसरा फॉर्मूला हो गया रूट ऑफ 2me अपॉन qb, और तीसरा फॉर्मूला हो गया 2m इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज इंटू 1 अपॉन b. तो इनमें से किसी फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल्स में, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मैग्नेटिज्म थोड़ा बड़ा चैप्टर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उससे आधा है, बिल्कुल कम है, बहुत जल्दी हो जाएगा. एसी भी छोटा सा चैप्टर है. अब आपके सारे छोटे चैप्टर्स में, बड़े चैप्टर्स में एक ही चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-3 क्लास के. Hopefully we will complete in the last week of December. Then we'll start our revision. In revision, we will do the question practice, derivation practice. Okay, when you are done with this, tell me
तो फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब आप देखिए इसमें हम ये लिख सकते हैं वर्ड्स में, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल equal to charge multiplied by potential difference. V is the potential difference. It should be clear to you. What is V? The potential difference. Okay. तो ये आपने इसे नोट कर लिया। Are you done with it? Okay. अब देखिए, तो ये फॉर्मूले हो गए और टाइम पीरियड तो हमें मालूम ही है। अब देखिए, when charge particle enters a uniform magnetic field at an angle theta, where theta is not equal to 0 degree. Remember, theta is not equal to 180 degree, theta is not equal to 90 degree. तो देखिए इस केस को अब हम सॉल्व करेंगे। सपोज करिए चार्ज पार्टिकल Q, its velocity is v, and this is the magnetic field. Velocity of charge particle makes angle theta with the magnetic field. So here we will resolve the velocity in two components, v cos theta and v sin theta. देखिए v cos theta will move the charge particle, will move the charge particle diagram देखिए, in the direction of field, in the direction of magnetic field, where v sin theta is perpendicular to the direction of magnetic field, to the direction of magnetic field. So it will move the particle on circular path. As a result, particle will move on हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। अब आप देखिए इस हेलिकल पाथ को हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए हाउ इट मूव्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए दिस इज हेलिक्स, ये देखिए सर्कल पूरा करता जा रहा है।
This is called helical path. तो देखिए हेलिक्स पूरा होता है, एक सर्किल पूरा होते हुए चार्ज पार्टिकल राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि v cos थीटा उसे कंटीन्यूअसली क्या करेगा, विल मूव द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जस्ट लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय फिंगर। ये देखिए उसने चार्ज पार्टिकल ने v sin थीटा के कारण एक सर्कुलर पाथ पे आया, पर देखिए जब वो सर्कुलर पाथ को ऐसे ट्रेस नहीं कर रहा, सर्कुलर पाथ पे आया तो वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। v cos थीटा उसे क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ हेलिकल पाथ। और यहाँ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, रेडियस ऑफ हेलिक्स आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो जब हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, समझा था r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, v was the velocity which was perpendicular to the velocity। तो यहाँ पे वही कंपोनेंट आएगा जो रेडियस जो सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा याद रखिए, we studied in the previous class, whenever charge particle velocity of charge particle makes a 90-degree angle with magnetic field, it moves on a circular path. So which velocity here is making 90-degree with magnetic field? Which component of velocity is making 90-degree with the magnetic field? Definitely it is v sin theta। तो आप इसको नोट करिए। अब इसमें और भी कुछ एक चीजें हैं जो हमें करनी है। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ हेलिक्स को क्या कर सकते हैं, you can read your refresher and books and you can draw the proper diagram। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल जहां बात करें हम कि टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल वो उतना ही होगा 2 पाई m अपॉन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्यू बी। और डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स ये कहलाती है पिच। तो देखिए अगली स्लाइड पे जाना है, वहां इस पे डिस्टेंस के बारे में फिर हम और वर्कआउट करेंगे। सो इफ यू आर डन विद इट, पिच पिच होगा डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, पिच होगा डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स। देखिए दो हेलिक्स है, ये पहला हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम उसे बोलेंगे पिच। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। पिच is the distance between two helix। अब देखिए दिस इज पिच। अब देखिए पिच को निकालना बहुत सिंपल है, एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स तक जाने में चार्ज पार्टिकल मान कितना टाइम लेता है, इक्वल टू टाइम पीरियड। डिस्टेंस वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू रख दी 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। सो दैट इज पिच, इसको नोट करिए।
अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लॉरेंज फोर्स, when a charged particle moves in a region where both electric field and magnetic field are present, then charged particle will experience two forces. One due to electric field, two second due to, or you may write other due to, better to write other due to magnetic field. The resultant of two forces. The resultant of two forces is called Lorentz force. So Lorentz force is given by Q E vector and Q V cross B. और हमेशा आपको कुछ पॉइंट मालूम होने चाहिए. पॉजिटिव चार्ज experiences the force in the direction of field, electric field, and negative charge experiences the force in opposite direction of electric field. और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. तो जितने वीडियो आपके आज पिछली क्लास का भी अपलोड कर दिया है, आप 2 बार देखिए. सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना आना ही चाहिए. तो ये लॉरेंज फोर्स है. When you are done with it, tell me. Magnetic force की direction we will find by using Fleming's left hand rule. Force, magnetic field and current.
force, thumb is force, forefinger is magnetic field, and middle finger is current. That is the concept of Lorentz force. तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसको करते हैं. Yes. Within 2 days, you will be getting the DPP. तो ये आपने से अब नोट कर लिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. पढ़िए. A proton carrying 1 milli electron volt, 1 mega electron volt, not milli, capital M है, mega होगा. The proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? यहाँ देखिए लैंग्वेज में दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं. एक तो प्रोटॉन दिया गया है और एक दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल. एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे. हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे √2me अपॉन QB. They enter in the same magnetic field, so B is constant. क्वेश्चन को करने की टेक्निक सीखिए. V is constant. So we can write R is proportional to 2me upon Q. So R1 upon R2 रेशियो निकालिए. M ऊपर है, M1 upon M2, E1 upon E2, Q डिनोमिनेटर में है. So we will have Q2 upon Q1. Here 1 is proton and 2 is alpha particle. Given R1 equal to R2 is given. इतना नोट करिए. We will be needing a space in the next slide. We will solve it. या हम इसको स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं. रुकिए देखिए. वेट अ मिनट. आप देखिए इसको. मैं इसको रफ कर रहा हूँ. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वो दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं. एक मिनट में आई एम गोइंग टू टेल यू द मोर प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग इट. सिंस दे एंटर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. इसलिए हमने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट. उसके बाद क्या करना है? देखिए उसके बाद आपको कहा है दे मूव ऑन द सेम रेडियस. तो रेडियस भी दोनों की क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. तो बी भी कांस्टेंट है. तो हम कह सकते हैं √me upon Q is constant. Do you understand it or not? So we can say √me is proportional to Q. तो हम इसको लिखेंगे. अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे. me is proportional to Q square. M1 upon M2, E1 upon E2 equal to Q1 square upon Q2 square, where 1 is proton and 2 is alpha
पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इसको नोट कर लीजिए। तो वी विल डू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसको नोट कर लो आप लोग, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 50% अब ये पैटर्न है। अगर हम जेई और नीट की बात करें तो वहाँ तो 100% ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम 12th बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो 50% पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करना तो बहुत जरूरी है। इफ यू नॉट सॉल्व ऑब्जेक्टिव देन यू मे लूज इन योर पेपर, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर हाई। तो देखिए, अब आप जानते हैं ये हो गया हमारा m1 अपॉन m2 इंटू e1 अपॉन e2 इक्वल टू q1 स्क्वायर अपॉन q2 स्क्वायर। मास रेशियो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर से बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल का मास रेशियो होता है 1:2:4, और चार्ज रेशियो होता है प्रोटॉन:2 न्यूट्रॉन: अल्फा पार्टिकल, ये भी बताया था 1:1:2। पर यहाँ पे 1 का मतलब है प्रोटॉन, 2 का मतलब है अल्फा, 1:4। और दूसरी बात क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, किसकी? प्रोटॉन की। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 1 पुट कर देते हैं और हमें अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है। चार्ज रेशियो प्रोटॉन: अल्फा पार्टिकल 1:2। सो 1/4 into 1/E2 will be 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा। सो E2 will be 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम पीछे जाके थोड़ा आंसर देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमें टिक करना है। तो हमें लगता है कि हमें ये आंसर टिक करना चाहिए, बी। बी इज द आंसर। तो हमेशा सबसे पहले whenever you get a question in the examination, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर सॉल्व होगा। तो ये बात आप याद रखिए, ये आपका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे आपने अब नोट कर लिया, तो हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, 1 बी आंसर है। ये और लिख देते हैं, आंसर बी। अब ध्यान से पढ़िए। इफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल are being accelerated by the same potential difference, ठीक है, enters perpendicular to the magnetic field, that means they are entering into the same magnetic field, okay, at right angle, and they are accelerated by same potential difference. That means they are given the same potential difference. The ratio of their kinetic energy will be, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पहली चीज। सो काइनेटिक एनर्जी इज हियर, क्योंकि आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है,
सभी तीनों पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सेम का मतलब हो गया कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी लेट इट इज E is proportional to Q। रेशियो चाहिए प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल कैन बी रिटन एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चार्ज रेशियो तो हम जानते हैं चार्ज रेशियो क्या होगा, 1:2। So A is the answer. A is the answer. तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल साइन बन गया, E is proportional to Q। E is proportional to Q। फिर क्वेश्चन बहुत आसान था। फर्स्ट इज प्रोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन D, थर्ड इज अल्फा पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। यस, a good question. This is the question came in JEE 95. A proton of mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is projected with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second at an angle 60 degree to the x-axis. If a uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied along y-axis, the path of proton। तो देखिए इस पहले आंसर बोल रहा है सर्किल है, क्योंकि 60 डिग्री पर एंटर कर रहा है तो सर्किल तो नहीं हो सकता। सर्किल तभी हो सकता है व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। तो पहले आंसर को तो हमने रिजेक्ट कर देना है। दूसरा आंसर भी बोलता है सर्किल ऑफ रेडियस, नहीं, हमें मालूम है हेलिक्स में मूव करेगा। इट विल मूव अलोंग द हेलिक्स, इट विल मूव अलोंग द हेलिक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स हम जानते हैं mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। मास 1.67 into 10 to the power minus 27, velocity 2 into 10 to the power 6 sin theta, that is sin 60 degree, charge 1.6 into 10 to the power minus 19, magnetic field 0.104। साइन 60 is √3/2 और 10 की पावर यहाँ हमने एडजस्ट कर ली। -27 + 6 और नीचे का जो पावर है ये भी ऊपर जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +19 अपॉन Q into B। So 1.6 into 0.104, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हुआ 1.67 into √3, √3 को लिख सकते हैं 1.73
into 10 to the power minus 2 upon 1.6 into 0.104। अब आपको इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2 मीटर। जीरो पॉइंट 2 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके टाइम पीरियड को क्या करेंगे। आंसर तो हमें पता चल गया। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक रफ कैलकुलेशन आएगा, एक्चुअली 0.18 आएगा। तो 0.18 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.2। तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई 1.67 into 10 to the power minus 27, 1.6 into 10 to the power minus 19, और मैग्नेटिक फील्ड 0.104। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.67। अब आपको कैलकुलेट करना है 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 0.104। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा into 10 into 10 to the power minus 10 seconds. So in my opinion, the answer is 2 pi into 10 to the power minus 9 seconds. तो इस तरह से देखिए, एक अप्रोक्सीमेटली, ये हमें टाइम पीरियड का आंसर नहीं मिल रहा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई m by QB। ओके, तो वी कैन डू वन थिंग, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। In my opinion, this is the answer. You can write it down. Some mistake will be there, but we understand how to solve this question. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। Okay, a proton and neutron, a proton and neutron both having the same kinetic energy, ठीक है, both having the same kinetic energy, enter perpendicularly into a uniform magnetic field B, ठीक है। For motion of proton and neutron on circular path of radius RP and RD respectively, the correct statement is, for motion of proton and neutron on circular path of radius RP and RD respectively, the correct statement is, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. वी विल हैव टू यूज द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. Radius is given by 2me upon qb. They enter the same magnetic field. So magnetic field is constant. They have same kinetic energy. So kinetic energy is constant. So we have R is proportional to m root m upon q. R proton is to R ड्यूट्रॉन. मास ऊपर है इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू क्यू नीचे है इसलिए क्यू न्यूट्रॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन. इसको नोट कर लीजिए. वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे भी कर सकते हैं. और ये हमारा आएगा मास रेशियो प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन 1:2. चार्ज रेशियो न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन. चार्ज रेशियो सेम है 1:1. So R neutron is equal to root 2 R proton. So the answer is A. Correct answer is A. So once you understand कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो ये सब बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए. जैसे आपने इसे नोट कर लिया तो आप बताइए कि आपने इसे नोट कर लिया है. ओके तो ये नोट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट. अ प्रोटॉन moving with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. Proton will move undeflected. तो क्या होता है अब इसका देखिए इसका सॉल्यूशन हमें अब लिखना पड़ेगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्रोटॉन मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इसका मतलब बहुत क्लियर है. नेट फोर्स ऑन if proton moves undeflected, that means the net force on proton is 0. It is only possible when electric force cancels the magnetic force. इसको नोट करिए.
Then we'll have to move to the next slide to understand the direction. So, are you done with this? है ना? आपने ऐसे लिख लिया. I've written the 4 answer. Undeflected है. मतलब वो deflect नहीं होता. It does not suffers a deflection and it moves straight. ये तभी possible है क्योंकि proton, because proton is entering into a region where both electric field and magnetic field are present. So both electric field and magnetic field will apply force on proton. If force due to electric field cancels the force due to magnetic field, then the proton will remain. Then proton will remain undeflected. Then proton will remain undeflected. So this you must remember. Okay. So I think you are done with it. So I will explain. अभी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं हुआ है. अब देखिए, suppose this is y-axis plus y and this is plus x minus x minus y plus z minus z. मान लीजिए this is proton and this is the direction of electric field and this is the direction of magnetic field. Now we know that proton is a positive charge particle, so it will experiences electrostatic force in the direction of. एक एग्जांपल ले रहे हैं. अब मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करे. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए, एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई आई. अब देखिए, एक मिनट. तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को हमें कहा गया है कि वो कैंसिल हो जाता है. सो द मैग्नेटिक फोर्स शुड बी लाइक दिस. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एफ बी आई मैग्नेटिक फोर्स. एफ बी आई मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है. अगर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए? मैग्नेटिक, देखिए, वेट ए मिनट. एफ बी आई यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. That is the direction of current because positive charge moves in the direction of current. ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई एफ बी आई. और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ मान ली. यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ थोड़ा इसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा. अब मान लीजिए, एक मिनट, ये थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन आ गया. ये प्रोटॉन मूव कर रहा है
मान लीजिए प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें चाहिए उसको कैंसिल करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स हमें चाहिए कि वो कैंसिल हो जाए। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए ठीक उसके अपोजिट। There is some problem with the question. There is some problem with the question. FM and FE. आंसर तो इसका सी है। FBI. यस, अप्लाई करिए। FBI अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ है। सम प्रॉब्लम इज देयर स्टूडेंट, इसको थोड़ा हम बाद में करेंगे। वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। और देखिए, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा। एक मिनट, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक एंड एफ इलेक्ट्रिक, कुछ प्रॉब्लम है, आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, then only the net force is zero and charge particle remains, इसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, remains undeflected। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होंगे। मैग्नेटिक फोर्स होगा QEV sin 90, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE, तो QVB इक्वल टू QE। लेकिन मैं एग्जांपल चाहता था, so V इक्वल टू E by B। अभी तो आप फिलहाल इतना नोट कर लो। So we will definitely in next class we will generate one example and we will do it. एग्जाम्पल तो हमें जनरेट करना पड़ेगा। ओके, हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले सकते हैं। यस यस, ये हम कर लेंगे। we'll do this case in detail in the next class। अभी तो फिलहाल आप नोट कर लीजिए। हमेशा याद रखिए, अगर चार्ज पार्टिकल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू E अपॉन B। थोड़ा हम मिस्टेक कर रहे थे डायरेक्शन में, तो आगे इसको सुधार देंगे। तो अभी एंड करते हैं इसको। नेट का प्रॉब्लम अच्छा रखिए और मुझे अपना आप एड्रेस भेज दीजिए, तो मैं आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल आपके घर भिजवा देता हूँ। Send me your address on WhatsApp. Okay.